Hello, you all lovely buddies. A very warm welcome to you all on this platform. I, Pooja Sharma, yes, I'm giving you my introduction. I, Pooja Sharma, welcome you all on this platform. Okay, so you must be having so many questions in your mind and now you are more energetic. I know that everything is going on like pop-up type. Everything in your mind, everywhere you really want to just explore. अभी हमने जो इतना बड़ा hurdle है, the very first hurdle we had was our class 10th और उस board को हमने clear कर लिया है. So, जब हम 10th board को clear कर लेते हैं, we have that confidence and we are more enthusiastic. But sometimes the opposite happens, that we have done it and when we become lazy. ठीक है ना, अभी तो next year होने वाला है हमारा board. So let us have fun for this session. So थम जाइए, wait for a second. I'll let you know about some stats that you know that there are so many students. हाँ, बहुत सारे ऐसे students होते हैं. They feel that okay, this is this 1 year we have to just enjoy our life. We have this part because others in the other session we are just going to study and have board classes and we won't get any time. So let's enjoy, right? You enjoy it, but you don't hamper your studies. That's what I really want to say. I'll teach you English and English के साथ में ऐसे थोड़े से life lessons भी चलते रहेंगे और बहुत मस्ती मजाक होने वाली है. My name is Pooja Sharma and I am your English educator. So, ma'am, आप यहाँ क्या लाए हैं? What you have brought here? So, I have this book. This is not my book, this is your book, everyone's book and this is NCERT book and this is authorized book और ये आपके है बिल्कुल curriculum में है and the name is Hornbill. Okay, can anyone out of you, अगर आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, this is the very first introduction to your book, tell me the meaning of hornbill. क्योंकि क्या होता है, you know, I have encountered this part that many times if I ask, they don't know the name of their book. The name of the book is really very important. These are the minute details you must cater for. कि पता होना चाहिए what is this name, what's the meaning of this. If you don't know, no, don't worry. Just tell me and ask me any question here which is going to be relevant. Okay, relevant होना चाहिए from our subject and from our lives as well. So, I'll tell you. Definitely, whenever I'll like take a look on your comments, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी everything, and might be in the next session as well, or might be we can do ask me anything at any time. Okay, so let's get started. This is Hornbill, and Hornbill is a book. This Hornbill means what? It is a name of a bird, you know. This is a name of a bird. Now, let me take you to the part. ये आपकी textbook course में है, and there is one more book as well. But today I am going to teach you a chapter from this book only. So that's why I want to give you an introduction of this book. If we took a look about this part, that this is a syllabus. Okay, which chapters? How many chapters are coming? Like there are prose and that is reading a skill. Then we go with the writing skills. The reading skills mein we have these many things. We can say 6 chapters are there, and with the chapters we have some poems as well. Then we go with the writing part as well. So we can and we will do everything. So we can की बात आती है तो थोड़ी सी एनर्जी और हो जाए यहाँ पे, कमेंट्स में खड़का दो, यहाँ पर बता दो कि तुम कितने एनर्जेटिक हो. जो बोलते हैं ना कि यंग खून है हमारे अंदर, जवान खून है, उस जवान खून के थ्रू बता दो मुझे in the comment section that yes ma'am, we are ready to start our very first chapter. Before that, let me tell you what's the name of the first chapter. The name of the first chapter is The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady. Portrait means what? A character sketch. That means how you describe about anyone. Okay, so description होता है, उनकी detailings बताई जाती हैं, character sketch होता है वो. So all these things are about a lady. When we talk about Indian lady, we can clearly define it very well. हम अच्छे से बता सकते हैं Indian lady को about their attire, how they behave, and as a mother, as a girl, as a friend, as a best friend, as a wife. So we can tell in many ways how they play their role completely. But if I talk that here, we are not talking about as a mother, we are not talking about as a wife, we are not talking about as a friend, we are not talking about as a girl, friend, we are not talking as about our best friend, but we will take a look about how our grandmothers are and how gradually they change according to their phases, like the age phases, the ages
when we grow, they also grow. So this is a chapter where you are going to miss your grandmothers definitely, and if you all love your grandmothers, then do like this session and share with everyone. This is a thing which you can do to help others as well. This is one shot for you, just to know that we can do it anytime. Right? You just need to search it, Pooja ma'am, and then chapter name, and you will find it out definitely. Talking about here the characters. Characters में अगर हम बात करें तो दो characters हैं जो main है, और पूरी story actually इन्हीं के surroundings में है. And as you can see, this is author, narrator, and grandmother. So who is author? How we can know about the author and about the author's grandmother? But पहले आपको ये दोनों important बातें याद रखनी है, that there are two main characters. There are other as well, but they haven't like been seen all over the story. पूरे टाइम नहीं रहे हैं. पूरे टाइम किसका स्केच बताया गया है? ग्रैंडमदर का स्केच बताया गया है. एंड लेट्स मूव अहेड एंड गेट टू नो अबाउट नरेटर, कि नरेटर इतना प्यार करते थे अपनी ग्रैंडमदर से कि उन्होंने उसके ऊपर एक स्टोरी लिख दी. उन्होंने इतना प्यार से इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है, एंड हाउ दे डिस्क्राइब्ड इट. लाइक देखो, सुंदर तो कोई भी कह सकता है. कोई मेरे को पहले मिल करके फर्स्ट में लाइक मैम यू लुक ब्यूटीफुल, दैट कैन बी सेड, दैट इज वेरी इजी, एवरीवन कैन कम एंड से दैट. लेकिन अगर कोई आपकी बात अपने मन से समझ जाता है, दैट हाउ यू टीच, हाउ यू बिहेव, एंड जो बोलते हैं ना कि जो आपके अंदर इनर चीजें होती हैं, दैट इज लुक फॉरवर्ड. तो उस चीजों को अगर कोई समझ जाता है या उस चीजों के बारे में तारीफ करते हैं ना, तब आपको ज्यादा अच्छा लगता है. ओ एंड देन दैट टाइम यू सरप्राइज दैट हाउ यू नो अबाउट दिस, दैट आई लाइक दिस मच एंड दैट. व्हाई? बिकॉज यही तो सारी चीजें होती है दैट मेक्स यू लाइक दैट क्रिएट्स एन इंडिविजुअल डिफरेंस, एंड दैट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स. राइट? सो इसी तरीके से ये है हमारे यहाँ पे ऑथर, एंड ऑथर का नाम क्या है? ऑथर्स नेम इज खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह जो है, उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में पोर्ट्रे किया हुआ है यहाँ पे. ही वॉज एन इंडियन ऑथर, ही वॉज अ लॉयर एज वेल, ही वॉज डिप्लोमैट एज वेल, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. सो ही वॉज लाइक ऑल राउंडर, ही वॉज ऑल राउंडर. साथ ही साथ में इनका एक बहुत ही फेमस बहुत ज्यादा फेमस, मच्छर खा रहे हैं, क्या करूँ मैं ना, बहुत बार सब कुछ ट्राई कर लिया. ऐसा मत बोलना मैम, वो लगाओ, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ ज्यादा ही खून मीठा है शायद. सो उनका ना सबसे फेमस के ऊपर आ जाते हैं. His experience was in 1957 when partition of India inspired him to write Train to Pakistan. So ये याद रखिएगा, it is going to be more helpful when you write your answer. Whenever you write your answer, you know very well that अभी तक आपको थोड़ा सा पता ही है that when you write your answer with author name and you describe about author, generally and majorly when you write it in poetry part, जब आप poetry को describe करते हो, poet के बारे में लिखते हो, उनके फेमस वर्क्स के बारे में लिखते हो, ये अलग इंपैक्ट डालता है. सो लाइक अभी तक आपको चीजें समझनी है ये सारी कि कैसे आपका आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर अबाउट खुशवंत सिंह दैट उन्होंने क्योंकि बिकॉज ये क्या थे, उस समय के थे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, और इन्होंने वो सारी चीजें देखी थी, एंड दैट्स व्हाई ही हैड रिटन लाइक स्टोरी ऑन दैट ट्रेन टू पाकिस्तान. और इसको कब लिखा? 1956 में लिखा, एंड विच बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नोवेल. मतलब उस टाइम से क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो अबाउट हिज whole story. क्या है पूरी story, what he want to tell us and how we are carried forward with that or not. क्या हम भी उन्हीं की feelings को लेते हुए आगे चलते हैं? क्या हम भी इसी तरीके से imagine कर पा रहे हैं हमारी grandmother को और हमारी यादें? Are we also getting reminiscences nostalgic or not? ये सारी चीजें मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी आपको. So be aware, be attentive, and let's get started. So this is a story about the portrait of a lady and portrait of a lady, and it is taken from the book. ये actually an excerpt है ना, और ये excerpt किस में से लिया है? The Mark of Vishnu and Other Stories में से लिया गया है, and it is written by खुशवंत सिंह. This story narrates about the childhood days spent by the author with his grandmother. कि बचपन में कैसे वो grandmother के साथ में अपना time spend करते थे, और उनकी grandmother भी उनसे कितना प्यार करती थी. आपको भी अपने दिन याद आ रहे हों अगर, तो मुझे बताओ कि जब आप छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो आप अपने grandfather grandmother उन सबके साथ में बाहर, हर जगह बाहर जाने का जिद करते थे कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी जाना है. इफ इट इज आस्क्ड टू मी, तो मुझे याद है वो टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, और मतलब मेरे दादा मछलियों को खाना खिलाने जाते थे. इट वॉज लाइक अ रिचुअल, राइट? हम बोलते हैं ना रजीम, रिचुअल, वैसा वाला था कि उन्होंने लाइक
टिल हिज लास्ट डेज, एंड डेज, उन्होंने वो सारा काम डेली एट दैट सेम टाइम किया था। तो वो मुझे याद है, अपने बचपन की याद है। इफ यू ऑल्सो हैड सम मेमोरीज विद योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, एनीवन, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो उसी तरीके से इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज ऑल्सो डिस्क्राइब द चेंज इन रिलेशनशिप। या जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारा रिलेशनशिप जो है वो सबके साथ में चेंज होता है, क्योंकि हम में ना थोड़ा सा अहम आ जाता है। हम थोड़े जैसे आपके जमाने की बातें क्या कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है, होता है, हम भी बोल देते हैं समटाइम्स। हम भी मतलब हमारे मदर को बोल देते हैं कि मम्मी यार आपको कुछ नहीं पता है, आजकल ऐसा नहीं चलता है। बट विद इन सेकेंड्स आई गेट रियलाइजेशन कि ये गलत तरीका है। अगर उन्होंने कभी हमें ऐसा बोला होता और हमें ट्रीट किया होता है कि तुम्हें नहीं पता है बेटा, तुम जाओ यहाँ से, तो क्या हम जिस लेवल पे आज हैं, जितना हमने ग्रोथ किया है, ये सारी चीज़ें हो पाती? सो दैट टाइम आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली से सॉरी ममा, सॉरी, रियली सॉरी, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं आपको ये डिटेल में सब कुछ समझाऊंगी, राइट? सो आई थिंक दैट दीज थिंग्स आर एक्चुअली नीडेड फॉर दिस जनरेशन, फॉर एवरी जनरेशन। सो वो सारी चीजें हैं कि कैसे हमारा रिलेशनशिप एज वी ग्रो अप, हमारा बाकी के साथ में रिलेशनशिप चेंज होता रहता है एंड हम उनको टाइम भी कम देते हैं। His grandmother due to the passage of time, ये हो गया। चलो, so ये कितनी प्यारी सी grandmother है। And you like the grandmother, तो definitely tell me in the comment section। बताओ फटाफट से कि grandmother कैसी लगी है आपको, कितनी प्यारी है। और हम भी ऐसी ही हमारी grandmother को जब हम imagine करते हैं तो ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे तो वो हमेशा सर ढक के रखती है ना। तो एक अलग ही मतलब ऑलवेज, हमने कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं है, हमेशा सर ढके देखा है। और चाहे कोई हो नहीं हो, एक अलग सा वो लगता है कि how down to earth you are, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, let's get started। He draws a lifelike portrait। कौन है he यहाँ पे? He is खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में बताया कि उन्होंने एक लाइफ लाइक पोर्ट्रेट मींस कि जैसे हमारे आंखों के सामने ही वो खड़ी हैं, इस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेट किया है इन्हें। शी वॉज वेरी ओल्ड, सो ही स्टार्टेड दैट कि कैसे वो बहुत ही मतलब पुरानी, सॉरी, शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़ी थी। हर फेस वॉज रिंकल्ड, उनके चेहरे में बहुत ज्यादा झुर्रियां ही झुर्रियां थी। हर हेयर वॉज वाइट एंड इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी। और उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक टाइम ऐसा था जब ये बहुत सुंदर थी और बहुत ही यंग थी, है ना? हम कभी सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते हैं। एंड हिज ग्रैंडमदर्स पिक्चर हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम एंड ही कैन सी देयर, ही कैन सी कि देखो वो और वहां पे उनके पास में अगर उनकी ग्रैंडमदर है वो, व्हाट्स द डिफरेंस, हाउ द चेंज अकर्ड। He wore a big turban, उन्होंने बहुत बड़ा सा टर्बन पहना है। His clothes were loose। अब ये किसके बारे में आ रहा है? ये ग्रैंडफादर के बारे में आ रहा है। दैट ये ग्रैंडफादर को भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रैंडफादर को देखो और कहाँ मेरी ग्रैंडमदर है उनको देखो। मेरे ग्रैंडफादर के टर्बन मतलब पग हो सकता है, साफा हो सकता है, बट यहाँ पे पग है क्योंकि अगर हम बात करें खुशवंत सिंह की तो ये उच्च फैमिली से बिलोंग करते थे। सो ही वोर अ बिग टर्बन एंड हिज क्लोथ्स वर लूज। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और वो उनकी ग्रैंडफादर जो ही वॉज नो मोर एक्चुअली। सो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि ये जो पिक्चर में आप देख पाते हैं ऐसा ऐसा करके, और अब वो ऐसा ढीले ढीले से कपड़े पहनते थे, अजीब से दिखाई देते थे और बहुत ही ज्यादा ओल्ड दिखाई देते थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही हैड वंस अ वाइफ और चिल्ड्रन। एंड इवन मैं ग्रैंडफादर को भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इनके भी बच्चे थे, इनके भी वाइफ थी, मतलब क्योंकि हम तो ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वो सोचते हैं यहाँ पे वो जस्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि नेवर वी थॉट दैट दे ऑल्सो हैड अ family, never we thought that they also had their young generation kind of thing. Never we thought that, never we even think as well that they had also their own space and own family and उनका भी एक टाइम था जैसे आप अपने समय में अभी जी रहे हैं, you are living your best, at the time they also had their thing. So at then everything was there. Okay, the writer thinks of her as not very pretty but constantly beautiful all the time. आप इस पूरी स्टोरी में देखोगे कि वो उसे प्रिटी नहीं, मतलब हर वक्त प्रिटी नहीं कहते, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो उसे ब्यूटीफुल जरूर से बताते कि मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो ब्यूटीफुल थी। He compares her calm face with the winter landscape. So here, थम जाए, रुक जाए, ये मैं यहाँ पे सिर्फ समरी बताने के लिए नहीं आई हूँ या वन शॉट करके फटाफट से चल दी और बहुत कॉम्पैक्ट सा बना दिया, नहीं, मैं आपको बताऊंगी फ्रॉम वेयर यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, विच लाइन्स आर नेसेसरी फॉर यू एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड हाईलाइटेड, इट विल बी हाईलाइटेड हियर एज वेल एज नो।
that you get the reference to context, that is RTC as well. So in RTC, if this is asked, or if the statement is given that he has compared her grandmother's calm face with what? Winter landscape. So everywhere you just, whenever I say something that it's important, that means it is important, and let you know that actually आपको ये सारी चीजें बहुत helpful करने वाली है when you are going to write your and make your answers. Okay, let's move ahead. During the lengthy stay in the village, मतलब ये अब अपने पूरे पीछे चले गए, back then जब वो की childhood में थे. Okay, तो जब वो बहुत लंबे समय तक गांव में रहे थे, grandmother का पूरा यहाँ पे बताया है रूटीन के, grandmother उनको उठाती थी बेड से, और अर्ली मॉर्निंग में फिर वो क्या करते थे, plastered his wooden slate, organized his breakfast and sent him to the school. कि कैसे उनको स्कूल भेजा जाता था, ये पूरी यादें आ गई उनकी. ओके, सो हियर आई लेट यू नो दैट क्या है कि उनके पेरेंट्स जो है, यानी खुशवंत सिंह जो है, वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ में रहते थे जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, एंड उनके जो पेरेंट्स हैं वो बिकॉज अर्निंग के लिए, कमाने के लिए वो शहर चले गए थे, तो दे मूव टू द अर्बन एरियाज, और ये अपने ग्रैंडमदर के साथ में विलेज में रहते थे. द टेम्पल वॉज कनेक्टेड टू द स्कूल. ओके, तो इन्होंने पूरा बता दिया दैट हाउ शी लुक्ड आफ्टर, है ना, उन्होंने कैसा ध्यान रखा, उनको कैसे ब्रेकफास्ट बना करके स्कूल के लिए प्रिपेयर कर देती थी, तैयार व्यार कर देती थी. एंड क्या यहाँ पे ही खत्म नहीं, वो उनको स्कूल तक ड्रॉप करती थी, क्योंकि स्कूल के जस्ट पास में टेम्पल था, तो वो उनका रिचुअल हो गया था, रोजाना एक रूटीन की तरह उनको ड्रॉप करके फिर वो टेम्पल चली जाती थी. एंड ये तो स्टोरी सबके लिए सिमिलर होगा कहीं ना कहीं, कि सबको पता है कि जब हम छोटे थे तो आसपास में कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी स्कूल में हमको भेज दिया जाता था, तो हमारे पेरेंट्स हमें ड्रॉप करते, चाहे बड़ी स्कूल में भी. तो भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होते ही हमको टैक्सी में भेज दिया या ऑटो वैन में भेज दिया. हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स, जब छोटे थे तो पेरेंट्स ही ड्रॉप करने जाते थे. रोते बहुत थे हम, है ना, रोने वाले बच्चे थे, नहीं मम्मी आप नहीं जाओगे, हमारे पास बैठो, ये टीचर अच्छी नहीं है, ये जल्दी नहीं छोड़ती हैं हमें, ऐसी करके यादें. ठीक है, सो शी सेट इनसाइड एंड स्टडीड द सेक्रेड टेक्स्ट देयर. सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, है ना, तो जो होली चीजें हैं, जो सेक्रेड चीजें हैं, उनको वो टेम्पल में बैठ के पढ़ती थी, while the children learned the alphabet, और जब तक कि वो स्कूल में कुछ चीजें सीखते थे. अब यहाँ पे प्रिटी सी फिर से है एक ब्यूटीफुल सी ओल्ड लेडी. बार बार ऐसी पिक्चर्स इसलिए ताकि यू रिमेंबर दैट, यू ऑलवेज कीप दैट माइंड कि हाँ हमें इमेजिन करना, जितना इमेजिन करके पढ़ोगे ना उतना आपको ऑलवेज याद रहेगा. ओके, मूविंग अहेड, देयर कम अ टर्निंग पॉइंट. क्या टर्निंग पॉइंट आता है ऑथर की लाइफ में, आई टेल यू, कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको बुला लेते हैं अपने पास में. तो ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह ऑथर, वो दोनों कहाँ चले जाते हैं, विलेज को छोड़ करके अब वो चले जाते हैं वहां पे अपने पेरेंट्स के पास में. अच्छा, विलेज में जैसे हमने देखा कि वो क्या करते थे, वो स्कूल जाते हुए बहुत सारे जैसे पुरानी स्टेल ब्रेड्स होती है, पुरानी जो चपातीज होती है, रोटी होती है, जैसे एक दिन पहले की है, वो सुबह स्कूल जाते हुए अपने जो ऑन द वे है वहां पे डॉग्स आते हैं तो उन डॉग्स को देते हुए जाते थे. ये उनका पूरा हमेशा का था कि स्कूल ड्रॉप करना है तो स्कूल ड्रॉप करने के लिए उसके साथ में घर से ही थोड़ी सी रोटी लेके जाते और डॉग्स को देते हुए चले जाते हैं, फिर टेम्पल जाकर के वापस से आते हुए बच्चे को ले आते थे. ऐसा उनका था. ओके, अब इनका टर्निंग पॉइंट आया. जब टर्निंग पॉइंट कब आया, जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें बुला दिया एंड ग्रैंड मदर को भी, कहाँ पे, सिटी में, व्हेन दे हैड फाइनली सेटल डाउन, और वहां पे आराम से अब जिंदगी जीने लग गए. द ऑथर स्टार्टेड अटेंडिंग एन इंग्लिश स्कूल. अब ऑथर को कहाँ भेज दिया गया है, इंग्लिश स्कूल में. And his grandmother no longer accompanied him to school. Accompanied मतलब क्या होता है? Accompany करना मतलब कि आपका साथ देना. Accompany means मतलब साथी ही होता है, जो companion होता है उसके लिए यूज किया जाता है. So अब उनकी ग्रैंडमदर उनको स्कूल ड्रॉप करने नहीं चाहती थी, ना ही साथ में उनको ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते थे वो. There were no dogs in the streets, so she started feeding sparrows. Okay, so she fed sparrows. अब क्योंकि यहाँ पे कहाँ आ गए हैं हम, सिटी में आ चुके हैं. सिटी में आपने देखा होगा that municipalities and all, तो they don't allow like street dogs, और वो stray dogs जो होते हैं वो इतने नहीं दिखाई देते हैं आपको. So what happened, वहाँ पे उनके यहाँ पे भी there were no dogs, तो वो क्या करने लगी, sparrows को feed करने लग गए. Then it was a turning point again in their friendship and they shared the same room. अब चाहे वो same room में है ना, but they are not talking too much. Okay, so but grandmother no longer went to school with him and the narrator used to go to an English school in, मैंने बता दिया आपको. Years rolled by. अब all time और बढ़ता गया, मतलब स्कूल का आ गया, पहले चाइल्डहुड का आ गया, फिर then when they शिफ्टेड टू सिटी आ गया. अब ईयर रोल बाय मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत साल बीत गए.
ओके बहुत साल बीत गए वैसे वाला। तो इयर्स रोल्ड बाय, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। हम लोग आजकल ऐसा स्लैंग लेते हैं ना कि क्योंकि अभी जैसे आप 11th में आ चुके हो एंड देयर वर सम फ्रेंड्स जो आपके साथ में 10th तक तो थे, नाउ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रीम्स चेंज्ड, तो अभी आप लोग अलग अलग हो गए हैं, तो आप क्या कह सकते हो, वी सी लेस ईच अदर। सो टू सी लेस ईच अदर मतलब कि हम एक दूसरे से कम मिलते हैं, वी आर नॉट कनेक्टेड, एक अच्छा सा स्लैंग की तरह आप यूज कर सकते हो। समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम, कभी कभी से बात होती थी और वो बात होती थी कि भाई तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। एंड व्हेन शी लर्नड अबाउट दैट व्हाट वाज टॉट टू देम, तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती थी। ओके, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, उन्हें बिल्कुल बिलीव अच्छा नहीं लगता था कि उनको स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो मतलब अच्छी चीजें हैं और सही हैं ऐसा करके। शी वॉज अनहैप्पी और थोड़ा अपसेट हो जाती थी। शी डिड नॉट लाइक इंग्लिश और साइंस एंड शी फेल्ट दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड व्हाट वाज मोर पेनफुल फॉर हर कि तुम्हें भगवान के बारे में, गॉड के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। यू आर टीचिंग, दे आर टीचिंग यू साइंस एंड इंग्लिश बट नॉट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स एट द स्कूल। सो द नरेटर वन डे टोल्ड हर दैट दे वर being given music lessons। अब उनको एक और इंसिडेंट याद आता है, ऐसे इंसिडेंट ही चलेंगे। ओके, एक और इंसिडेंट याद आता है जब उनको उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि हमको स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में अब क्या पढ़ाया जा रहा है, म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है। देन शी वॉज डिस्टर्ब्ड आफ्टर हियरिंग दिस, उनको ये सुनने के बाद में लाइक बहुत अच्छा नहीं लगा एंड शी थॉट दैट म्यूजिक क्वाइट इनडिसेंट। ओके, उनको लगा नहीं म्यूजिक अच्छी चीज नहीं है, ये स्कूल में पढ़ाने चीज नहीं है। फॉर हर इट वॉज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स एंड इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। उन्होंने इस तरीके का एक अपना परसेप्शन बनाया हुआ था ग्रैंडमदर ने कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, इट इज म्यूजिक इज फॉर ओनली बेगर्स एंड इट इज नॉट फॉर अ जेंटल फोक। जेंटल फोक मीन्स कि जो आम इंसान है, वहां के रहने वाले हैं, उनके लिए नहीं बना हुआ है। ओके, मूविंग अहेड, व्हेन द ऑथर स्टार्टेड अटेंडिंग यूनिवर्सिटी, अब वो वहां से भी, स्कूल से भी क्या हो गए हैं, आप जैसे आप भी निकल चुके हैं, अब नाउ यू विल गो टू यूनिवर्सिटी। तो खुशवंत सिंह भी है जो पढ़ने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, हायर स्टडीज के लिए। एंड ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम एंड ग्रैंडमा busied herself with spinning the wheel। अब वो व्हील को स्पिन करती थी, दिन भर प्रे करती रहती थी या फिर स्पैरोज को फीड करती रहती। शी यूज्ड टू रेस्ट इन द आफ्टरनून एंड फीड द स्पैरोज विद पीसेस ऑफ ब्रेड। तो ये यहाँ पे बार बार आपके आएगा अबाउट फीडिंग द स्पैरोज, बिकॉज इसका एंड में जाकर के बहुत अच्छा एक कनेक्शन है, बहुत रियली इमोशनल कर देने वाली चीज आएगी वहां पे। व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years ही फाउंड द ग्रैंडमदर अनचेंज्ड। अब जब वो यूनिवर्सिटीज के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए वो अब्रॉड चले जाते हैं, 5 साल बाद में आते हैं, तो भी ग्रैंडमदर बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। उन्हें लगता है ये 5 साल में वो शायद बड़े हो गए हैं, लेकिन ग्रैंडमदर में कोई चेंजेस नहीं आया। द वे शी यूज्ड टू लुक अभी आज भी वैसी ही दिखाई देती है एंड देयर वाज नो चेंज इवन इन हर रूटीन, उनकी रूटीन में भी कोई चेंज नहीं आया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ग्रैंड सन्स रिटर्न on her grandson's return she keeps feeding the poor birds for a long time। मतलब आने की खुशी तक भी जाहिर नहीं की थी ग्रैंडमदर ने कि भाई मेरा जो ग्रैंडसन है, जो पुत्ता है, वो पुत्ता इतने सालों बाद में आया है यहाँ पे। उन्होंने ये सारी चीजें इतना खुल के एक्सप्रेस नहीं किया और शी वॉज नॉर्मल एंड शी वॉज डूइंग हर डेली चोर्स, वही काम कर रही थी, उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया। बट इट वॉज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। एंड इवनिंग में क्या हुआ था, उन्होंने कुछ महिलाओं को बुला करके भजन कीर्तन, जैसे होता है ना भगवान को थैंक यू बोलना कि हाँ भाई हमारा बच्चा हमारे पास में वापस आ गया है एंड इट इज अ हंसी खुशी का माहौल, एवरीबडी इज हैप्पी। सो उन्होंने भजन वजन कराए थे एंड yes, the woman of the neighborhood got an old drum and started singing. He did not do bhajan that day, but इन्होंने नहीं किया था। Okay, she became unwell the next morning। जिस दिन वो आए, देखो अब देखो कि जब वो आए उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग पे ही इनकी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो गई। यानी व्हेन ही रिटर्न, उसके जस्ट एक दिन बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई और जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो शी वाज बिहेविंग लाइक लिटिल बिट डिफरेंट कि मुझसे बात मत करो। और शी सेड दैट आई नो दैट इट इज माई लास्ट टाइम, इट इज द एंड टाइम ऑफ माई लाइफ और मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा करके होने लग गया था। शी फेल्ट इट, उन्हें पहले पता चल गया। आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट सम पीपल इन देयर लाइफ बिफोर ऐसा सारी चीजें होती है ना, दे गेट द रियलाइजेशन दैट इट इज देयर एंड टाइम। ऐसा देखा है मैंने काफी सारे लोगों को। चलो, सो शी बिकेम अनवेल एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग डिस्पाइट द डॉक्टर्स अश्योरेंस। हालांकि डॉक्टर्स ने अश्योर कर दिया था कि नहीं ये तो थोड़ा सा फीवर है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट शी कुड सीम दैट हर टाइम टू डिपार्ट दिस वर्ल्ड। उन्होंने तो बोल दिया था मेरा तो वक्त हो चला है,
यहाँ से अलविदा लेने का। एंड शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम ओवर कन्वर्सिंग एंड शी रियली वांट टू जस्ट डू द जप्स। वो जो चाहती थी कि मैं तो जप करूँ, भगवान का नाम लूँ, जितना बेहतर है मेरे लिए, मैं तो तुमसे बात करके मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अब धीरे धीरे उनका फेस जो है उसी दिन मतलब क्या हुआ, उनका फेस जो है पेल होना पड़ गया। पेल होना मतलब पीला पड़ने लग जाना, कलरलेस होने लग जाना। ओके, एंड द बैड न्यूज comes here कि she was dead, she was no more and she was laid on the ground। अब सबको पता है कि जब डेथ हो जाती है and this like really hurts me, I don't know, whenever I teach this kind of chapters actually it make me really emotional, sorry, because in my life I have lost many people, many one, and they were very much close to my heart. So these kind of scenes like just, and I just sorry, okay, so as we all know कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें बेड वेड पे भी नहीं सुलाया जाता है, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। एंड वो सारे जो कस्टम्स होते हैं हम लोग जो देखते हैं कि घर वाले भी ऐसे अलग से हो जाते हैं, उनके लिए वो स्टिक्स लेकर क्या कि उनको बांधा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है, तो दैट ऑल स्टार्टेड हियर। आप सब समझ रहे हैं जो भी होती हैं ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। शी वॉज कवर्ड विद अ रेड, उनको कवर कर दिया गया था रेड शॉल से, एन अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। अब उनके फ्यूनरल का जो सारा अरेंजमेंट्स है वो होने लगा था और इवनिंग हो चुकी थी। द सन वॉज सेटिंग। अब क्या हुआ, सन सेट हो रहा है यहाँ पे और इवनिंग हो चुकी है। ये लाइंस मैंने क्यों लिखी है, ये मैं यहाँ से रिमूव कर सकती थी, बट वाई दे आर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि सनसेट हो रहा है, इवनिंग हो रही होती है ना, तब टाइम होता है स्पैरोज के आने का। आपने अगर कभी भी चिड़ियाओं को आटा खिलाया है या जानवरों से रिलेट करते हो, थोड़ा बहुत बर्ड्स को पाला वाला है, तो इनका एक फिक्स टाइम होता है। ये जो इस फिक्स टाइम पे वो आते हैं, चहचहाते हैं, बताते हैं कि भी हम आ गए हैं, आप हमें कुछ खिला दीजिए। सो दैट्स वाई ये लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे बॉट अ वुडन स्ट्रेचर, आपको पता है वो वुडन स्ट्रेचर ले आए। दे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, रुक गए थे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट नियर बाय हर डेड बॉडी and they did not chirp। वो हजारों इस तरीके से like she is sitting here, but वहां पे उन्हें स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ था, वुडन स्ट्रेचर पे, और हजारों चिड़ियाएं आ चुकी थी। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज देयर एंड वो पर चर्पिंग की आवाज नहीं कर रही थी, जैसे हमेशा चहचहाती हैं वैसे नहीं चहचहा रही थी। दे वर लाइक सिटिंग साइलेंटली, वो बस साइलेंटली वहां थे। एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, सबको बहुत दुख हुआ इन बर्ड्स के लिए। एंड द नरेटर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड, नरेटर की मदर ने सोचा कि भी हाँ हमेशा इस वक्त वो खाना खाने के लिए आती हैं तो हमें उन्हें खाना देना है। वो कुछ ब्रेड लेके आई, जो भी चीजें पड़ी थी उनको लाके उनको दी। She broke it into little crumbs, छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए। She threw these crumbs to the sparrows. The sparrows took no notice of them। देखो यहाँ पे तुम लाइक जो स्पैरोज हैं, जो बर्ड्स हैं, उन्हें रियलाइजेशन हो गया, उन्हें भी पता चल गया, और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो किसके लिए आई हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए आई हैं, वो चहचहा नहीं रहे हैं। इवन उनको अगर प्रेजेंट किया गया भी, उनके सामने ब्रेड्स रखी भी गई हैं, तो they were not eating, मतलब वो नहीं कर रही थी, नहीं खा रहे थे। Then they carried her dead body outside, फिर बस the sparrows flew away quietly and the crumbs of bread still remained lying there in the courtyard में, मतलब स्पैरोज बिना खाए चली गई। जब उनका डेड बॉडी लेके जाया गया, जनाजा लेके जाया गया, तो स्पैरोज भी उड़ चली और वो जो क्रम्स उनके लिए डाले गए थे वो क्रम्स वहीं पे पड़े थे कोर्टयार्ड में। Evidently the sparrows had come to mourn the death of the grandmother। So this was all about this lovely chapter। I feel it very emotional it is। I feel कि तुमने भी ये सब चीज़ें नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, आप भी वो सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। हमारे दिन में क्या होता है, हमारे दिन में हम इतने बिजी कर लेते हैं अपने आप को, हम इन सारी चीज़ों को याद ही नहीं करते हैं, ना ही याद करना चाहते हैं ऐसी सारी जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। बट व्हेन, अब मेरा काम तो पढ़ाना है, तो व्हेन दीज थिंग्स कम्स तो हो जाता है। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? मैम रेडी किस लिए? सो आर यू ऑल रेडी फॉर द MCQs पार्ट? आई एम नॉट हियर ओनली टू समराइज और टू, देखो ऐसा होता है ना कि मैं आती चल जाती, तुमको कुछ सेकेंड्स के लिए पढ़ाती, मतलब कुछ
मिनट्स के लिए शॉर्ट सा बना देती और चली जाती, बट आई रियली वांटेड कि आप ये एक जो थोड़ा टाइम अपना इन्वेस्ट करो, उसमें अपना एनर्जी डाल रहे हो, उसमें अपना टाइम एफर्ट्स डाल रहे हो, तो यू जस्ट टेक अवे द थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर you in your exams. Okay, it's just not for anything else but for your exams only. Okay, so first question, I hope you are going to answer it, and the first question is, with which musical instrument did grandmother sing? आपको ध्यान होगा भजन के बारे में बताया गया था that there was a भजन संध्या there हेल्ड क्यों किया गया था, बिकॉज खुशवंत सिंह आए थे आफ्टर 5 years एंड फॉर दैट उन्होंने एक शाम को रखा था. सो अब वहां पे बताया विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रैंड मदर सिंग, कौन सा था वो, ड्रम, शहनाई, वायलिन या फिर सारंगी. तो करेक्ट आंसर, यू नो इट वेरी वेल, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, इट मीन्स अ लॉट, एंड द करेक्ट आंसर इज ड्रम. मूविंग अहेड, हाउ डिड ग्रैंड मा लुक, अब आपको बताना, ये आप बताओगे, शी वॉज शॉर्ट, शी वॉज बेंट, शी वॉज फैट या फिर ऑल ऑफ द अबव. दिस यू आर गोइंग टू टेल. Here the answer is D, all of the above. Next, the third question comes here. How birds show their gratitude towards grandmother? कैसे birds ने show किया था अपना gratitude grandmother के लिए, ये आपको बताना है. Options I'll let you know is A is they refuse to eat food given by the author's mother. जो author की mother ने bread crumbs डाले थे वो उन्होंने नहीं खाए. They sat next to grandma's corpse without chirping. वो chirp नहीं कर रही थी और चुपचाप बैठे थे. They didn't turn to house post grandmother's death. कि वो तो आए ही नहीं थी. क्या ऐसा था? नो. ऑप्शन इज ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड आई होप दैट यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. देखो आंसर दो, डू प्रैक्टिस, डोंट टेक इट लाइक फॉर ग्रांटेड. ओके, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू ओनली. अगर आपने याद कर लिया, आंसर दे दिया, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट दैट यस दिस मच वी नो, दिस वी नो. सो दिस मच करते हुए आपका कितना बड़ा दिस मच हो जाता है पता नहीं चलेगा, राइट? सो समुद्र भरेगा ना आपका. Now, here I have detailed answers as well for you. So, these are really very important. First, for the, like, अगर हम कहें exams के perspective से, तो that it is. Second, for your answer making. I know that things are being changed and everything is going on, but it's okay. If you know the answers, how to write the answers, then everywhere you are with your skills. आप अपना skill बनाओ ना इसको कि आपको आंसर लिखना आता है. Now, the question comes in any way. You can write your answer. तो आपको आंसर यहाँ से बन के आ जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट. Why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? Very good question. Now, in this question can be asked in many other ways, but the answer will remain the same. कि कैसे या तो ये हमारा पूछा जैसे कि भाई उनको क्यों हार्ड लगता था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी, या फिर इसको ऐसे भी पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू ऑथर ही कैन नेवर अज्यूम और ही कैन नेवर इमेजिन दैट हिज ग्रैंड मदर वाज यंग एंड ब्यूटीफुल. कुछ भी करके अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस आंसर. तो ये आंसर आपको बाकी के आंसर्स बनाने में भी बहुत मदद करेगा. आंसर इज द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज एज एन ओल्ड पर्सन. ओके, हमेशा कैसे देखा उन्होंने? ओल्ड पर्सन की तरह देखा. हिज अर्लीस्ट मेमोरी वॉज दैट ऑफ एन ओल्ड लेडी. उनकी जो याद है वो यही याद थी कि ये तो बूढ़ी हैं, है ना. Therefore, as a child, he found it difficult to believe that she had been any different ever. इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उन्हें जब देखा या जब भी उन्हें लास्ट मेमोरी याद है अपनी ग्रैंड मदर के साथ में, वो यही थी कि ये बूढ़ी हैं, है ना, बूढ़े से हो गए हैं, शी इज नॉट यंग. तो दैट्स वाई अब उनको कभी भी ये बिलीव ही नहीं हुआ कि अच्छा इससे पहले कुछ और भी दिखाई देती थी, किसी और तरीके से भी सुंदर सी दिखती थी. ही कुड नॉट बिलीव दैट वंस शी वॉज यंग एंड प्रिटी. नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर. ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर. रीड द होल क्वेश्चन. बच्चा क्या देखता है? खुशवंत सिंह देखा है, कैरेक्टर स्केच देखा है, आंसर लिखना शुरू कर दो. अरे खुशवंत सिंह के आगे ग्रैंड मदर भी है. इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है भैया तुम्हारे लिए. सो एज अ पोर्ट्रेट बाय हिम, ओके, नॉट बाय यू, अगेन पोर्ट्रेट बाय हिम. यहाँ पे खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में खुशवंत सिंह ने कैसे पोर्ट्रेट किया है वो करना. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट एज इट इज पोर्ट्रेट बाय यू, how you feel that the portrait of a lady was presented, या कैसे भी करके आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना है आंसर, राइट. अब द क्वेश्चन का आंसर आया हमारा पार्ट क्या है. द ग्रैंडमदर हैड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. शी वाज लाइक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. शी वाज अ डीपली रिलीजियस वुमन, या, एंड प्रेयर्स वाज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू हर. पैरामाउंट मतलब अटरमोस्ट इंपॉर्टेंस था उनका लाइफ में उसके लिए. ओके, शी
spent most of her time in prayers. She was kind to animals too. तो पहला हमारे लिए क्या आया, prayers वाला point आया. Second हमारे लिए क्या आया, animals वाला point आया. In the village and she fed street dogs, and in the city shifted to feeding sparrows. She remained calm through the various changes in her life. So ये आ गया third. That जैसे जैसे वो अपने जैसे बोल सकते हैं हम कि जो फेजेस हैं जहाँ पे वो चेंज हो रही थी, बट उसके साथ ही साथ में शी वॉज वेरी काम, है ना. उनकी एज बढ़ रही थी लेकिन उसके साथ साथ में वो काम थी, बिल्कुल काम थी. एंड ऑलवेज लाइक वेलकमिंग अदर्स, वैसा वाला. शी डिड नॉट प्रोटेस्ट. वो कोई भी मतलब ऐसा हमारे जैसे नहीं फैल जाना, हाँ फैल जाते थे, ऐसा नहीं हो रहा है तुम्हारे स्कूल में म्यूजिक पढ़ा रहे हैं फैल गए, ऐसा नहीं करते थे. So even though she disapproved of Khushwant Singh's education, she accepted her sickless son quietly when he was given a separate room. जब उसे अलग separate room दिया गया तो भी वो बहुत normal थी. ऐसा नहीं कि नहीं ये बच्चा बड़ा हो रहा है तो नहीं मैं अपने पास में रखूंगी. So she was very normal. When her grandson left for studies abroad, she did not show her emotions. तब भी उन्होंने, हालांकि उन्होंने उनके सर पे एक ना लाइक वो बोलते हैं ना प्यारा सा जेस्चर दिया था. उन्हें छोड़ने भी आई थी जब ट्रेन तक उन्हें छोड़ने जाने की बात थी खुशवंत सिंह को, तो शी वेंट देयर एज वेल, और उन्हें छोड़ा था. तो ऐसा नहीं कि नहीं वो छोड़ने भी नहीं गई थी, वो गई हैं. अब बकायदा ओके बाय बाय बोल के आई हैं उनको कि तुम जाओ अपनी जिंदगी बना करके आना वापस, लाइक दैट. एंड केप्ट रिमार्केबल सेल्फ कंट्रोल. और सेल्फ कंट्रोल था, रोना धोना नहीं था वहां पे. हमारी मम्मा, मेरी मम्मा, मैं सीरियसली बोल दूं, मेरी मम्मा ना, मेरी मम्मा को पता चल जाए कि मुझे यहाँ से वहां, मैं ना इधर से उधर शिफ्ट होना है मुझे, है ना. और एक तो उनके कान बड़े तेज है, मतलब पता नहीं कैसे ना, जहां पे भी जब भी मेरा इंटरव्यू चल रहा होगा, कॉल वॉल चल रहा होगा ना, वो जैसे ही मैंने रखा शी विल बी लाइक अच्छा अब तू वहां जाएगी, नहीं नहीं अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने यही रहना ठीक है अपने नहीं. तो ये सेल्फ कंट्रोल दादी में था ना, ग्रैंड मदर में था. इन हर लास्ट मोमेंट शी विथड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द फैमिली एंड डिवोटेड हरसेल्फ टू प्रेयर्स एज वेल. जब उनका लास्ट मोमेंट आ गया था, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल वाली बात को हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो चुका था. यस, फोर्थ पॉइंट इज अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट दैट व्हेन शी गॉट टू नो दैट इट इज हर लास्ट डेज, तो वो क्या हो गई, प्रेयर की तरफ और गॉड की तरफ डिवोटेड हो गई. खुशवंत सिंह हैड अ लॉन्ग एंड लविंग रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर एंड शी वाज वेरी अफेक्शनेट टू हिम एज वेल. शी टुक एक्सीलेंट केयर ऑफ हिम व्हाइल ही वाज अ चाइल्ड. एंड thank you so much, and I hope that I also take care of you as my child, as my buddies, as my friends, as my brother, as sister, as any you can tag it, anything you want to tag it, but I really want to be connected to you. That's my point, and I really think that आप भी मुझसे कनेक्ट होकर के इस तरीके से प्यारे से पढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ लेसन्स सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ के अपनी लाइफ का कुछ जो एम है, मोटो है, उसके लिए अपने स्टेप्स को एकदम फर्म रखते हुए, डिटरमिन रखते हुए जाना चाहते हैं. सो ये फर्मनेस, डिटरमिनेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको इस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है. वंस अगेन आई वुड से दैट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट बी फर्म अबाउट योर. आपने 2 घंटे पढ़ना है, पूरा 2 घंटा बस वही करना है, फिर बस बाकी के तुम 24 घंटे में से कुछ भी करो, मुझे नहीं दिक्कत है, बट प्लीज बी फर्म एंड बी like devoted about your studies. So it's going to be helpful for you as well as for your family, and I love you so much all. Thank you. Bye bye.